तो कर्नल कीर्ति शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मेरे चैनल पे। पहली बार आप आ रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। मैं आपसे जानना चाहूँगा यूपी के बारे में इन पर्टिकुलर, ऑफ कोर्स उसके बाद हम इंडिया की भी बात करेंगे। पूरे देश में एक वायलेंस हुई कल, तो आप इस पूरी जी जी। वायलेंस को किस तरीके से देखते हैं? मतलब ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमिक मार्च को रोकने के तरीके से देखते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लॉक करने के तरीके से देखते हैं, या फिर कोई और ऑब्जेक्टिव है इन जो सिनिस्टर फोर्सेस हैं इनका? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? Sir, in India, since independence, there has been a history of Muslim appeasement by all the governments which were in power. So basically, this has led to Muslims to think that they have got entitlement over each and everything. In recent times, since BJP has come to the power, gradually what they are doing are reducing these appeasement one by one. You can see like removal of Article 370, triple talaq, and what has added further to agony of the Muslims is the Gyan Vapi case, with the court ordering a videography of the complex, which has led to the recovery of a sibling. So Muslims are feeling threatened. Nupur Sharma is just an excuse. Basically, they want to show their power to the government that we can take the country for a ransom. That is what their basic concept is. And yesterday's incidents were a reflection of that. The Muslims are worried that there would be more and more such steps taken by this government, which will be towards reduction of these appeasement. Like there may be uniform civil code, there may be population control bill, there may be many other such things. So they just want to pressurize the government as well as the public that if you don't listen to us, there may be violence, there may be other such kind of protests all around India. दैट्स अ वैलिड पॉइंट। अच्छा, मुझे आप बताएं कि यूपी में इन पर्टिकुलर, हम यूपी का रेफरेंस लेते हैं बिकॉज यूपी पूरे इंडिया का फोकस पॉइंट है, और पॉलिटिकली एंड अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। देर इज़ नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट। नाउ यूपी में योगी इज़ द चीफ मिनिस्टर, और उसने लॉ एंड एनफोर्समेंट को बड़ा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया है। कल मैं ट्विटर पे देख रहा था तो काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे योगी मॉडल यूपी में है, अगर पूरे इंडिया में ये ही मॉडल अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम है कभी अनप्रोवोक्ड राइट्स की, या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की, या एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड करने की, तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आफ्टर ऑल ये योगी मॉडल क्या है, और ये क्यों इतना सक्सेसफुल है? Sir, Yogi is basically a no nonsense person. He doesn't accept nonsense from anybody. If a person is doing wrong, he takes him to the task. That is the basic concept of the Yogi. He is having regular meetings with the DMs and SPs of the all cities through the video conferences, where he gives very clear-cut directions. He is not patronizing any you name gangster or these kind of persons. So what is happening is that police has got a free hand to deal with these kind of persons, and this has led to a situation where the law and order has improved tremendously. If I can recall the 3-4 major incidents I would like to recall. One was the killing of Vikas Dubey of Bikru village. Basically, he killed 9 police chaps who had gone to arrest him. Yogi ensured that Vikas Dubey was brought to the justice. In UP, in last about 2 years, there has been about 1,142 encounters, killing a large number of gangsters and arresting many. With the result, the gangsters who are out on parole or otherwise are queuing up to surrender. They are fearing for their life. So there is a scare in their minds if they are outside and if they do any wrong thing, they might be targeted. If you see the bigger gangsters of UP, all are in jail, like Mukhtar Ansari, Atiq Ahmad, Bablu Srivastav, and everyone is in jail. Nobody is out.
because of the fear of Yogi. The fear Yogi has created because he doesn't go for these appeasement. He doesn't think like these are the Muslims, so he can leave them. If you see the recent incident in Kanpur, where the violence took place, he arrested so many people, and the main person, that Mr. Hayat, he is now going after him like a tornado. His links with the PFI are being investigated. His bank account has been investigated, which found 47 crore rupees had been transacted through this bank account. His links with 3 police officers are being investigated. His links with 3 Samajwadi Party MLAs are being investigated. So he goes into detail and he ensures that the person is finished fully. So that is what the UP model is: appeasement to none and ensuring the application of legal provisions. कल कीर्ति, टेल मी वन थिंग, ये जब आप अपीजमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी लोगों को ये रहता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम अपीजमेंट जो चला आ रहा था वो उसने बंद कर दिया। लेकिन मैं एक बात को और एम्फेसाइज करना चाहूँगा, जो गवर्नेंस का मॉडल है योगी का वो बेसिकली सेकुलर है। रूल्स रेगुलेशंस के एनफोर्समेंट में या लॉ एंड ऑर्डर को एंश्योर करने में किसी कम्युनिटी की कोई भी प्रेफरेंस नहीं है। आप क्या समझते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है ये? बिल्कुल सही है सर। कोई भी जो भी गैंगस्टर है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, उसको सही तरीके से हैंडल किया गया है। इसमें कोई भी कास्ट या रिलीजन का कोई भी रोल नहीं है एज फार एज यूपीज मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। ओके, अब मैं आपको एक इंसिडेंट की तरफ ले चलता हूं जो बॉम्बे में हुआ कल। और उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि करीब 50-60 जो मुस्लिम महिलाएं थी वो एक पुलिस स्टेशन में गई और उन्होंने जाके वहाँ पे बोला कि आप एफआईआर लिखिए नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में। तो ऑब्वियसली जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो लेडीज़ की एक एक करके एफआईआर ले रहा है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि 50 लेडीज़ का वहाँ पे जाना एक प्लान तरीके से ही हो सकता है। और अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम पे वायलेंस और एक ही तरीके के नारे। आपको लगता है कि ये जो पूरा जो एपिसोड एक तरीके से ड्रामेटाइज किया जा रहा है, मीडिया इज ऑलरेडी देयर, सबको खबर है, सोशल मीडिया पे आप देखो, ट्विटर पे कि आज ये हो रहा है, यू नो ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो आपको क्या लगता है ये एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कि ये इंटरनेशनल इशू है, या somebody is really getting into the, somebody wants to pull down this government? Is that so? Sir, it is a planned strategy. If you see the way this incident, Nupur Sharma incident, has been taken up by some Arabian countries, Qatar in May, US has raised this issue, and yesterday's incident which were happening all over the country. This is basically a synchronized and planned strategy to target this government and lower down its reputation in the eyes of the world as well as within the country. All opposition parties are supporting it. Yesterday's incidents were most traumatic in the states where opposition parties are ruling. West Bengal, Mumbai, Jharkhand. These are the states which were very badly affected. Whereas in the states where BJP is ruling, the protests were not so large or they did not lead to any major incident. पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें? पाकिस्तान का रोल यही है सर कि अंदर ही अंदर वो जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं थ्रू ISI उनको इंसाइट कर रहा है कि आप इस इशू के ऊपर प्रोटेस्ट करो, आप इस इशू के ऊपर बाहर निकालो। एंड एज यू नो, मुस्लिम्स आर वेरी रिलीजियस माइंडेड, दे आर वेरी, आई वुड से, जिसको करेक्ट वर्ड जिहादी यूज करते हैं, वो उसका मतलब ये है कि धर्म के नाम पर वो सही और गलत को डिफरेंट करना भूल जाते हैं। उसकी वजह से इस इशू पर इतने सारे मुस्लिम्स एजिटेट हो रहे हैं, बिकॉज उनको इशू पता ही नहीं है कि जो नुपुर शर्मा ने बोला वो कुछ भी गलत नहीं बोला। उसने वही बोला जो कि मुस्लिम्स की किताब में लिखा हुआ है और जो मुस्लिम प्रीचर्स सालों से कहते आए हैं। ओके, यू हैव गॉट ए वैलिड पॉइंट। अब मैं आपका जो अटेंशन है वो ड्रॉ करूँगा ओवरऑल। अगर आप देखें नेशनल लेवल पे, और ये काफ़ी थॉट प्रोसेस आ रहा है, एक मुस्लिम राइटर भी है, एक्चुअली ही लिव्स इन लंदन, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, और एक और है
तो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू एंड मुस्लिम दीज टू कम्युनिटीज दे हैव टू स्टे टुगेदर इन इंडिया। तो जो आपस की जो रिलेशनशिप है, आपस का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हम किस तरह रहें, आप किस तरह रहें, कैसे एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। इज देयर ए रिक्वायरमेंट टू रीड्रॉ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द टू कम्युनिटीज? सर बिल्कुल है। भारत में सर अगर आप देखें, आजादी के बाद से हर एक चीज वो मानी गई है जो कि मुस्लिम्स या माइनॉरिटी की है, उनको हर चीज में प्रेफरेंस दी गई है, जबकि मेजॉरिटी की किसी भी चीज को कभी भी कंसीडर नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो जो ये राम मंदिर अयोध्या का था इशू था, या काशी का इशू था, या मथुरा का इशू था, ये बहुत साल पहले सुलझा लिए गए। गवर्नमेंट ने इसको सॉर्ट आउट करने का कोई एफर्ट किया ही नहीं, बिकॉज जो भी गवर्नमेंट्स थी वो हमेशा मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक मानती रही और हिंदुओं को वो जाति के नाम के ऊपर बांटते रहे, जिससे कि जिस भी पार्टी को मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया वो पार्टी पावर में रहती गई। ये 2014 के बाद ऐसा हो रहा है कि हिंदू भी अपने वोट की ताकत दिखा रहे हैं। एंड मोदी जो है केवल हिंदुत्व की वजह से पावर में नहीं है, मोदी पावर में है अपने अच्छे काम करने की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से, और जो वो वेलफेयर स्कीम्स को पूरे देश के दूर दराज एरिया में पहुंचा पा रहा है उसकी वजह से। हिंदुत्व भी एक इशू है, बट उसका मेन इशू है उसका काम करने का तरीका। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो विपक्षी पार्टीज हैं उनको अपना भविष्य बहुत अंधकार में लगा। वो सोच रहे हैं कि हम कैसे इस इशू को उछालें जिससे कि मोदी की बदनामी हो। जो भारत में रफली अबाउट 80% हिंदू हैं, उसमें से कम 40 या 50% ऐसे हिंदूज हैं जो अपने आप को सेकुलर कहने में गर्व महसूस करते हैं। मैं भी उसमें से एक, और वो चीज को सही तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अटेम्प्ट हो रहा है, ये हो रहा है कि किसी तरह उन हिंदूज को स्वे किया जाए उन अपोजिशन पार्टीज की तरफ जो कि मुस्लिम परस्त है। और इस समय केवल बीजेपी को छोड़कर कोई भी एक दूसरी ऐसी पार्टी भारत में नहीं है जो मुस्लिम परस्त ना हो। एक शिवसेना एक पार्टी थी, वो भी इस समय क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में है कांग्रेस और एनसीपी के साथ, तो वो भी वही काम कर रहे हैं जो कि बाकी पार्टीज कर रही हैं। कल मैं ट्विटर स्पेस पे था कर्नल कीर्ति, और उसमें एक दो हार्ड लाइनर भी थे। आपको पता ही है, बेल कर्व रहता है, कुछ लोग हार्ड लाइनर रहते हैं, कुछ लोग रेशनलिस्ट रहते हैं, कुछ लोग लिबरल्स रहते हैं। लेकिन जो हार्ड लाइनर्स थे उनका ये पॉइंट था कि अभी इंडिया को 74-75 ईयर्स हो गए, ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू आ रही हैं। जो 47 में प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम अभी भी है, वो प्रॉब्लम गई नहीं। तो उनका ये मानना था कि जब तक आप पाकिस्तान का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, अब वाट एवर मे दैट बी, कि पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी कि वो इंडिया के अंदर न्यूसेंस क्रिएट कर सके, ये उसकी कैपेबिलिटी को ख़त्म किए बगैर इंडिया की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस नहीं निकल सकता। ये बड़ा हार्ड स्टेटमेंट है, आई एग्री विद दैट। बट डू यू थिंक इस स्टेटमेंट में कोई वैल्यू आपको नज़र आती है एज ए मिलिट्री मैन? सर इस स्टेटमेंट में बिल्कुल वैल्यू है, क्योंकि जो भारत में, मेरे को कहने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये फैक्ट है कि जो भारत में मुस्लिम्स रहते हैं उसमें से ज्यादातर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं भारत में रहते हुए भी। और इसकी वजह से पाकिस्तान जो है जब चाहता है भारत में पैसे से और अपने रिलीजियस एंगल की वजह से इस तरह के प्रोटेस्ट को शुरू करवा पाता है। अब मुश्किल यह है कि पाकिस्तान को किस तरीके से हैंडल किया जाए, वो मिलिट्री लेवल पे इतना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान के पास चीन का सपोर्ट है। तो इस वजह से इंडिया इस स्टेज में नहीं है। इंडिया इज मेनली फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट of infrastructure as well as all round development. So it doesn't want to enter into any war either with Pakistan or with China, because if it does so, its development will be badly affected, because India is not a cash rich country where it has got huge resources of money. It can handle war also and it can handle development also. So that is the biggest problem, how to handle Pakistan, though Pakistan is self-destructing itself. The economic condition of Pakistan is such that it may not be able to survive for
long. But Muslim countries, mainly Arab countries, are supplying money to Pakistan underhand to keep it afloat, because they are one of the targets of Arab countries is India, and they want somehow Pakistan to keep on creating trouble in India, because they don't want India to become a superpower. ओके, वेरी वैलिड पॉइंट। अब आपने कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका और नीचे की तरफ जा ही रहा है, वेदर इंडिया डज एनीथिंग और नॉट, पाकिस्तान इन एनी केस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आज की डेट में ऐसा लगता है। अब आप देखिए कि ऐसा कोई कंट्री जो इन एनी केस डिटोरिएशन की तरफ जा ही रहा है, उसका ये इंटरेस्ट हो सकता है, और ऑफ कोर्स इंडिया एक हमेशा कॉन्टेक्स्ट रहता है पाकिस्तान के लिए कि ठीक है, इंडिया अभी इकोनॉमिकली एक ऐसे स्वीट स्पॉट में पहुंच रहा है जहां पे वो डेवलपमेंट की तरफ इट हैज़ टू टेक ऑफ। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली विल नॉट वांट इट, एंड प्रॉब्ली सो मेनी अदर नेशंस एज वेल, इंक्लूडिंग चाइना एंड प्रॉब्ली सम अरब नेशंस, मे बी यूएसए फॉर द टाइम बीइंग। Yes. तो उस तरीके से आपको लगता है कि पाकिस्तान का ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि हम तो डूबेंगे ही, आपको भी ले डूबेंगे, और उस हालत में फिर इंडिया को किस तरह के सॉल्यूशंस लेने चाहिए इस पॉइंट पे, जैसे कि हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली सिचुएशन ऑफ कोर्स वी आर इन बेटर पोजीशन नाउ, लेकिन सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग जो इकोनॉमिक सुपर पावर और फिर मिलिट्री सुपर पावर बनने की तरफ चलें, तो कैसे इसको आप हैंडल करें अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है? सर, इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है कि जो भी कानून के खिलाफ काम हो उसको सख्त से सख्त तरीके से हैंडल किया जाए, जैसे कि योगी कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वो बिल्कुल भी केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है, वो बल्कि इसको और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये है कि वो नहीं चाहते कि देश संभले, देश तरक्की करे, क्योंकि अगर देश तरक्की करता है तो इसमें मोदी और बीजेपी की वाहवाही होती है, उनको वापस पावर में आने का मौका नहीं मिलता है, तो इसलिए वो इसके ऊपर एक ब्लॉक करे। तो मेन तो यही है कि सख्ती से कानून बनाए जाएं और वो लागू हो, इम्प्लीमेंट हो। इसी जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम लागू कर पाए तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इस अपीजमेंट को रोकने के लिए। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे अपीजमेंट की जो चीजें चल रही हैं वो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो सकती है। ओके, तो कर्नल कीर्ति शर्मा, रियली वंडरफुल। एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, सिंस यू हैव बीन कीपिंग ए वेरी क्लोज आई, दो यू आर ए मिलिट्री मैन, बट आई नो you are a very keen observer of national and international strategic issues as well as political issues. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 24 elections in 24, do you think it will be मोदी मॉडल और it will be योगी मॉडल? बिकॉज ट्विटर पे तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप आज देखें तो पीपल आर टॉकिंग ऑफ योगी मॉडल, कि अगर इंडिया को लॉन्ग रन में सस्टेन करना है तो इट इज़ योगी एंड योगी। व्हाट डू यू से? Sir, in my opinion, Yogi is required to serve in UP for 5 more years, because UP is very, very important and central to India. UP is the biggest state, and the Muslim politics plays a major role in UP. If Yogi is able to control UP well, whole nation can be controlled easily. So in my opinion, 2024 will be Modi only. But Yogi is definitely in pipeline to be next PM, or maybe next to next PM, because Amit Shah is already also there, who is also playing a good role as a home minister, and he is again a no-nonsense man. So BJP, I don't think, believes in too many upheavals as far as the hierarchy is concerned. BJP follows the laid down principles. So my personal opinion is it will be Modi, followed by Amit Shah, and then Yogi. Maybe by his next term is complete, he may be in line to become the PM. चलो, थैंक यू सो मच। इट्स रियली वेरी गुड सक्सेशन प्लानिंग एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एंड प्रॉब्ली इंडिया इज इन टू गुड हैंड्स, नो डाउट अबाउट दैट। कर्नल कीर्ति शर्मा, थैंक यू सो मच। इट हैज़ बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू, and of course we are going to meet again because these issues are dynamic and more discussions will be required. So thank you so much. Thank you very much, sir. It was my pleasure to discuss with you the issues about the UP as well as India, sir. Thank you very much.
तो आपने कल कीर्ति शर्मा को सुना. ही इज आर्मी वेटरन एंड ही हैज गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पुलिस एंड आर्मी वर्किंग. ही इज अ very sharp observer of national and international history, especially Southeast Asia. And what conclusion actually you have drawn? Law and order has to be enforced, and rule of law and supremacy of constitution has to be enforced. There is no way out about that. Unfortunately, some part of Muslim community, they are thinking that they can take law into their hand and can enforce their will on the nation. Yogi model, very effective, and that is why people are talking about yogi model in the entire country. I hope you like this conversation. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe.